वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागतः. Being free from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past have become purified by knowledge of me, and thus they have attained transcendental love for me. This is one of the, you can say, foundation shlokas of Krishna consciousness. Why it's explaining. Many times we tell people, take to spiritual life. किसी ने देखा है? वैसे ना, किसी ने देखा है कृष्णा? किसी ने देखा है? ऐसा बोलते नहीं बोलते लोग. When you take to spiritual life, बहुत लोग बोलते हैं ना, किसी ने देखा है? भगवान देखे क्या आपने? क्यों करता है ऐसा? ये सब बकवास है. So here Krishna says, bahavo jnana tapasa. बहुत लोग by practicing. क्या practice होता है? दो चीज होता है practice में. ज्ञाना, tapasya. One side you are trying to understand Krishna, other side you are doing sadhana. Then the spiritual growth will come. Correct? Two things should go parallelly. One side we do cultivate knowledge of Krishna, and then tapasya. And what is tapasya? Just like in the hostels, you have made 6 regulative principles. No intoxication, no gambling, no illicit sex, no meat, no movies, no film songs. This is tapasya. If this tapasya is there, and at the same time you're trying to acquire Krishna knowledge, spiritual growth will come. And definitely, just like somebody may say, मतलब कल हो जाएगा, मतलब if I start chanting in the morning, शाम तक can I see God? 9 stages are given. It's a science. Landmarks are given. What are the different landmarks given? First, Adau Shraddha. Initial faith should be there. अगर मैं कृष्ण का सेवा करूँगा, मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए. अगर ये विश्वास नहीं तो हम खाली नाटक करेंगे, बस नाटक. कृष्ण का सेवा का अवसर है, सेवा नहीं करेंगे, नाटक खेलेंगे बच्चों की तरह. और छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के खेलते हैं,
बड़े हो के भी, क्योंकि विश्वास नहीं है. सो फर्स्ट इज श्रद्धा. श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है. चेतन महाप्रभु का डेफिनेशन है श्रद्धा का. क्या है श्रद्धा का डेफिनेशन? श्रद्धा शब्द विश्वास, एक विश्वास. क्या विश्वास? अगर मैं कृष्ण को संतुष्ट कर दूं, मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा. कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है. मेरा मतलब सब कुछ, सारे कर्मों का मतलब सेटिस्फैक्शन, सारा सब कुछ इज ऑस्पिशियस. एट द एंड यू डू सम एक्टिविटी, एट द एंड कृष्ण सेज वेरी नाइस. करेक्ट. जैसे घर में हम कुछ बच्चे कुछ करते हैं, एट द टाइम पेरेंट्स से वेरी नाइस, वेरी हैप्पी. करेक्ट. वी मेक समथिंग. समटाइम्स एट होम लेडीज बहुत महीने से खाना बनाती हैं. इवन दो दे नो गुड, दे आस्क्ड हाउ वाज इट. He says very nice. Oh, then my all effort is satisfied. He say क्या बनाया? Sometimes they fight also. But the whole idea is that everything we do, we consciously ask, are you satisfied at then? Isn't it? You're working for a customer, you go to the office, you do all the work, then customer say, very satisfied. True, aren't we trying in all field or activity, किसी को satisfy करने का कोशिश करते नहीं करते? है ना? ट्रू और नॉट? करते नहीं. ऑफिस कहीं काम कर रहे हैं, उसके बाद महीने के बाद बॉस को मिले, बहुत संतुष्टि आपसे, अच्छा लगता है, आदमी खुश है जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ. अरे ये सब तो फाइनली व्हाट इज ए पोपट लाल है, सब बकवास है ये सब लोग. एक्चुअली ये लोग सब दे आर खोटे, दे आर नॉट रियल मास्टर्स. एंड दे कैन बी सेटिस्फाइड फुलिशली ऑल्सो, एंड दे कैन बी डिससेटिस्फाइड विद नो रीजन ऑल्सो समटाइम्स. दे आर नॉट रियल मास्टर्स. Correct? If you make the mission of your life, my boss will be satisfied, you will commit suicide tomorrow. For no reason he will be angry at you, even though you are perfect. Correct? Even though you worked hard, you are genuine, he is imperfect. He has 4 defects. Any jiva has defects. We all jivas, we are defective in the material situation. When we are liberated, we are not defective. But presently, being conditioned by the different circumstances. Somebody gave a very nice example, I'll repeat. How do you know we are limited? Yes, limited in the sense you can choose what you want to eat, but you cannot say I will not eat. Correct? Just like all of you have chosen we eat vegetarian food, we will eat prasadam only, that's still higher. Okay, that choice you can have. But can you have a choice, I'll not eat? So you are limited. Your freedom is limited. To some degree you can play around, but not absolutely. But the Lord doesn't need food. Swarat is fully independent. Even if one jiva in the material world doesn't serve him, he is independent of all of it. He is fully satisfied. Krishna showed that. He walked out of Vrindavan as if he doesn't know anybody. And the Vrindavan people, the Vairagya he showed, it died without him. Similarly, Lord Rama walked out of Ayodhya when his father gave the order. As if nothing, he doesn't know. People could not live. They all walked with Bharat Maharaj behind him. Can't live without him. Correct? But he can live without you. Never think that God is dependent on us. True, that is on a material level. On a spiritual level is a separate issue. Krishna also enjoys relishing pastime with his devotees. So, Vita Raga Bhaya Krodha Manamaya Mamupashita Bahuvo Gyana Tapasa Puta Bhava Magata. So, different stages hoti hai. First stage, Shraddha, initial faith. Let me go to devotees. ये सब कुछ है इसमें. एक्चुअली भारत में जो भी आदमी पैदा होता है, ये श्रद्धा तो उसके खून में है कि कुछ है भक्त, कि ये आध्यात्मिक में कुछ है. ये तो बचपन से हर के आदमी पे रहता है. नहीं तो भारत में जन्म नहीं मिलेगा उसको, कहीं और मिलेगा उसको. इस भूमि में जन्म की क्या जरूरत है? अगर इंद्रिय भोग करना था, कुत्ता बिल्ली का काम करना था, सोना था, गेम खेलना था, मूवी खेलना था, ये कुत्ते बिल्ली के जीवन के लिए तो चाइना में पैदा हो सकते हो, अमेरिका में पैदा हो सकते हो. और कुछ कुत्ते बिल्ली के जैसे लोग यही इच्छा करते यहाँ को पैदा हुआ, मैं अमेरिका में पैदा होना था. उसको तो पता भी नहीं क्या भाग्य इधर पैदा होने का. देवता लोग भी भागवत में लिखा है, प्रार्थना करते हैं कि अगर मैं भारत में पैदा हो जाऊं. है लिखा है भागवत में, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक प्रगति का अवसर है. लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठाओगे तो इधर पैदा आपका बेमतलब पैदा हुए, नेक्स्ट जन्म में बनोगे कुछ कुत्ता बिल्ली सुअर और जाओ नरक में, सीधा नरक जाओ. ये भूमि में अगर कोई पैदा हुआ आदमी
और सीरियस नहीं होता स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बहुत अपना ही मतलब क्या कहते हैं, सुसाइड कर रहे हैं ना, होता ना, अपने ही गले में डाल के। सुसाइड का क्या मतलब है? जीवन का अवसर फेंक रहा है, स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है। मतलब उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, इतना बड़ा अवसर और फेंक रहा है। ठीक है, सो एक्चुअली लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, हर आदमी को जो भारत में पैदा हुआ है बहुत सीरियस होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बहुत सीरियस। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। देवता प्रार्थना करते हैं इधर पैदा होने के लिए। मैं आपको मजाक कर रहा था ना, एक बारी मैं मथुरा गया था, तो मैं वहाँ रेलवे स्टेशन में वो टीटी लोग होते हैं, तो देखा कुछ स्वामी जी आ जाओ जाओ, तो देखो उनसे गपशप कर रहे थे। आज कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर क्या करते हो, जब करते हो, क्या प्रीचिंग करते हो। तो जाते समय बोला आपका ट्रेन आ गया, आप जाइए। तो मैं गया, तो मैंने आप कभी आइए मैंगलोर। क्यों आए? आप आइए मथुरा। हम क्यों आए? क्या है उस जगह में? इधर सब कुछ है। तो ये हमको विश्वास होना चाहिए उन लोगों की तरह। करेक्ट, कुछ साधारण व्यक्ति है, क्या है, टिकट कलेक्टर, क्या कोई करोड़ों कमाता है, कुछ छोटी सी पेंशन, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन है, मैं ठीक जगह पे हूँ, इस जगह मेरा आध्यात्मिक प्रगति है। करेक्ट, ये आपको संतोष होना चाहिए। एक्चुअली बहुत बड़े भाग्य के बाद आदमी को ये अवसर मिलता है आध्यात्मिक प्रगति का। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, बिकॉज जीवन का तो लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति है, कोई और चीज़ के लिए तो मतलब जन्म लिया तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ये सोचो मेरे जीवन का मतलब क्या है, क्यों भगवान ने मेरे को इस दुनिया में जन्म दिया, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और कोई रीज़न से आप दुनिया में जन्म नहीं हुए। ये बड़े बड़े ये ड्यूटी एज्यूम करके आप रखे हैं, ये सब पागलपन है। मैं कितनी बारी समझा चुका हूँ। जेल में कोई अंदर घुस रहा है, बोला क्यों घुस रहा है? ड्यूटी है। पागल है कि क्या ड्यूटी तेरी? तू अभी मूर्ख है, तू अभी अज्ञानी है, तू अभी पापी है। तेरे को एक ढंग का आदमी बनाना है, इसलिए अंदर लाए। करेक्ट, क्या ड्यूटी करना है अंदर? तो सिमिलरली हम लोग सब बड़ी बड़ी ड्यूटी एज्यूम करते हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है। भगवान की दृष्टि में वो नहीं देख रहे भगवान। तभी कभी समझ नहीं आता कि भगवान ने मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ क्यों कर दिया अभी सडनली। करेक्ट, समझ नहीं आता। हमको भी गुस्सा आता है, अरे भगवान हम तो ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, क्योंकि तुम तो बड़ी बड़ी ड्यूटी एज्यूम करके रखे थे, वो तो मूर्खता थी। और कुछ और ड्यूटी भगवान चीज़ें आपके लिए रखे हैं। आपकी ड्यूटी थी कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ और बाहर आ जाओ, और इसी के लिए भारत भूमि में जन्म मिलता है, क्योंकि ऐसा जन्म नहीं मिल सकता, ऐसा अवसर नहीं है। इतने सारे तीर्थ हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतना बड़ा वेद का ज्ञान है, और इतने बड़े बड़े बहुवो ज्ञान तपस्या, कितने बड़े बड़े संत इस मार्ग में जा चुके हैं और जाके लिख चुके हैं, सब कुछ है। ये जो आपकी स्टेजेस लिखी है ना, श्रद्धा, साधु संगा, बहुत लोग इस स्टेजेस से जा चुके हैं और बोले सब ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ इधर से राइट को मुड़ो, लेफ्ट को मुड़ो, फिर उसके बाद आगे जाओ, आगे जाओ, प्रभु जी का घर आ जाएगा, ठीक है ना, कदरी में। तो आप बोलेंगे तो मैंने तो देखा नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आगे जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट, उनका प्रभु जी का घर आ जाएगा। तो बोलेगा ये तो क्या है, गलत है। अरे कुछ नहीं, लोग बोलेगा अरे मैं गया हूँ, मैं गया हूँ, मैं गया हूँ, तो बोलेगा ठीक है फिर तो सिमिलरली कृष्ण जी बता रहे हैं, डर किस चीज़ का? बहुवो ज्ञान है, बहुत लोग कर चुके हैं। जस्ट लाइक आप, बहुत एक और सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, पानी आएगा, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, करते हैं, छोटा छोटा स्कूल में भी होता है कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। और बच्चा उधर क्या होगा, मैडम होगा ना एक्सपेरिमेंट? चुप रहो, हर दिन लोग करते हैं, करोड़ों लोग कर चुके हैं इस लैब में ही, इतना ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली जब हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप शुरू करेंगे, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान दिखेंगे, अभी आपको थोड़ा टाइम लगता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत लोग कर चुके हैं। भागवत में ये सब सक्सेस स्टोरीज एक के बाद एक लिखी गई हैं। जैसे हम लोग आजकल हर दिन सुबह स्टडी कर रहे हैं, आप लोग सब वेलकम है। अजामिला का व्याख्यान अभी अभी पूर्ण हो रहा है, ठीक है। हर दिन सुबह करीब 7 बजे से 8 बजे कीर्तन भागवत का प्रवचन होता है, जो लोग हैं आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने एक और चीज़ शुरू किया है कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है पता नहीं चलता किसी को समझ आया नहीं आया, करेक्ट। सो वी मेड स्टडी सर्कल, जैसे होता है ना आपका स्टडी सर्कल पढ़ाई के लिए। अभी आपका बेटा बड़ा होगा, कोचिंग जाता है इकट्ठे, मतलब उसमें बहुत टाइट रहता है, क्लास में बैठे टीचर को पता भी नहीं चलता 80 बच्चे में किसी को समझ आया नहीं आया। सो सिमिलरली वी मेक लाइक अ स्टडी सर्कल
सेंटर ओनली प्रभुपाद बुक्स। अभी हम लोगों ने शुरू किया एक किताब, वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, रूप गोस्वामी की लिखी हुई किताब, उसको पढ़ना शुरू किया। छोटा सा किताब है, शुरू में ऐसी छोटी किताब स्टडी करेंगे। सैटरडे 7 बजे शाम को, ऑल ऑफ यू आर वेलकम, ठीक है। एंड संडे को सुबह जो लोग 16 माला बहुत टाइम से जप कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेज हम लोगों ने शुरू किया है, तो यू आर ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज श्रद्धा। श्रद्धा के नेक्स्ट स्टेज आती है साधु संग। आपको थोड़ा विश्वास है, कुछ है तो चलो सब चलते हैं, साधुओं के संग में चलते हैं। एक्चुअली साधु ना, मैं तो लास्ट टाइम डिफाइन किया था साधु, हम लोग साधु नहीं है। साधु वो पिक्चर रखी उनकी, साधु बहुत बड़ा चीज होता है। परित्राणाय साधुनाम, साधु को रक्षा के लिए भगवान पर्सनली खुद आते हैं। जब प्रहलाद को छूने की कोशिश करी थी हिरण्यकशिपु ने, भगवान ने विराट रूप लिया था नरसिम्हदेव का, करेक्ट। द्रौपदी को उसने छूने की कोशिश करी तो कृष्ण आगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाया उसको, करेक्ट। और एक एक आदमी को मारा कृष्ण ने महाभारत में। उस समय नहीं मारा, आगे मारा, एक एक को मारा, जो चुप था उसको भी मारा। जस्ट लाइक लॉ में भी होता है ना, जो आदमी साइलेंट और क्राइम हो रहा है उसको ही पनिशमेंट मिलता है। कृष्णा परफेक्ट जज है। अर्जुना ने बोला था जब भीष्म को, कृष्णा उनको नहीं, मेरे दादा, मारो इनको। चुप क्यों थे ये, क्यों चुप थे, पनिशमेंट लेने दो उनको। द्रोणाचार्य, अरे मेरे गुरु, चुप क्यों था ये आदमी उस समय, एक एक को मारा, करेक्ट नहीं। तो भक्त को जो साधु बन जाएंगे आपको पर्सनल सुरक्षा मिलती है आपकी। आप कुछ लोग क्या करते हैं ना, योग करते हैं बड़ी बड़ी कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तरह की सिद्धि है, आप कुछ कर सकते हो। जैसे संजय को सोच लो, सिद्धि तो थी ना, क्या दी थी, बैठा वहाँ था किधर, हस्तिनापुर पे, और युद्ध कहाँ हो रहा था, कुरुक्षेत्र में। डिस्टेंस तो है अच्छा खासा, ओवरनाइट, कह रहे, और बैठा उधर पूरा युद्ध देखा। यही नहीं देखा, बोला अर्जुन को पसीना आ रहा है, बहुत टेंशन आ गई, ऐसा क्लोजअप ही देख रहा है उधर बैठा हुआ, उसका मन तक देख रहा था वो। इतना मतलब आपका कैमरा में इतना डीप नहीं देख सकते, आपकी पसीना भी आ गया उसको, पूरा फोकस, और पूरा अश्रुपूर्णाक्ष लक्षणम, उसके आंसू भी दिख रहे थे उसको। वहाँ कहाँ बैठा है, हस्तिनापुर में। ऐसा टेक्नोलॉजी है आपके पास, तभी तो मैं बोल रहा था अभी आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये तो घटिया किस्म का टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में इतना वायर, इतना भड़ इंडस्ट्री, कितना लोग का हाथ पैर टूटते हैं उसको बनाने के लिए, और उनको सामान के लिए युद्ध करो। इतने युद्ध क्यों होते हैं, क्योंकि इनको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करेक्ट। संजय को ना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, ना ही उसको इंडस्ट्री चाहिए थी, ना ही उसने पॉल्यूशन किया, कुछ नहीं किया उसने, बट एक सिद्धि थी। तो ये ज़्यादा इनको घमंड लेने की भी ज़रूरत नहीं है साइंटिस्ट को, इससे बड़े साइंस है। लेकिन अभी ये हमारा मूल लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वेद में यही साइंस नहीं है, इसके ऊपर चीज़ दी है आध्यात्मिक साइंस। मेटेरियल साइंस भी है, लेकिन हम लोग अपना इस चीज़ में टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहते, बिकॉज ये चीज़ें किसी तरह एनीवे इन्होंने इमिटेट कर लिए, लेकिन इससे ज़्यादा अक्लमंदी से नहीं करिए, क्योंकि पूरे नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं साथ साथ। अग्रीड। लोगों ने ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि 50-100 साल से ज़्यादा ये पृथ्वी में लोग नहीं रह पाएंगे, इतना स्थिति आ गई, ऐसा पॉल्यूशन, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा डिस्ट्रक्शन। पानी नहीं है, अभी पूरे डिस्कस हो रहा है 50 साल बाद भारत में आपको पानी वो शिप से लाना पड़ेगा, पानी नहीं है। तो ये तो सस्टेनेबल सिविलाइजेशन नहीं है, घटिया किस्म की टेक्नोलॉजी है। घमंड किस चीज़ का ले रहे हैं पता नहीं। तो साधु संग मतलब आप इन लोगों से थक जाओ, ये नहीं सोच लेना ये मेरे को बचाएंगे, ये नहीं बचा सकते, आपके साधुओं के पास जाओ, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा ये, कह रहे। हर दिन न्यूज़ में पढ़ते, अरे आज लेटेस्ट साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया। इन चीज़ों के पीछे व्यर्थ टाइम नहीं बर्बाद। प्रभुपाद जी ने बताया है, और इस चीज़ पे विश्वास करो, इतना प्रोग्रेस नहीं किया है इन्होंने 300 साल में, साइंटिस्ट इतना नहीं किया, इतना भी नहीं। जहां थे लोग वहीं हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स आया है, सिटीज़ में पहले 2.2% पॉपुलेशन हॉस्पिटल में एडमिट होता था, अभी 3.7% हो गया 10 साल में। आगे ये प्रकृति है क्या, ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। अरे अगर आपने बोले कि साइंस ने बीमारी दवाई बनाया है, तो लोग तो हॉस्पिटल, ऐसा दवाई बनाओ ना कि हॉस्पिटल जाना लोग बंद कर दें। ये क्या ज़्यादा लोग पड़े रहते हैं, बीमारी बढ़ ही रहा है, करेक्ट। मरना बंद नहीं हुआ, लोग मर ही रहे हैं। बुढ़ापा बंद नहीं हुआ, लोग बुढ़ापा हो रहा है, करेक्ट। तो क्या प्रगति हुआ ये आपका।
और पेट में बच्चे को तो दर्द होता है, वो तो आपको मालूम नहीं है, सॉल्व क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। इतना भी प्रगति नहीं हुआ, खाली जो रियल प्रॉब्लम है हमारी वही की वही है। तो इस चीज पे तब जाके आप साधु संग में जाओगे, नहीं तो क्यों जाओगे साधु संग में? हर आदमी को प्रॉब्लम है, मृत्यु आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारियां एक के बाद पड़ती रहती हैं। अभी मैं बीमार था 3-4 दिन, कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट? और उसके बाद नेक्स्ट जन्म आएगा और पेट में पड़े दर्द में पड़े रहोगे, विफलते रहोगे, तड़पते रहोगे। एक्चुअली प्रभुपाद जी हंसते हैं, ज़िंदगी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कभी आप जैसे पानी से मछली को निकालें, हिंदी इज़ कन्वीनियंट नो, सबको समझ आता है। पानी से मछली को निकालें और ज़मीन में रख दें, वो फड़ती है ना, क्या बोलते हैं उसको? फड़पना, फड़पना, हाँ, व्हाट यू से? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? तड़पना, हाँ, थ्रॉबिंग। तो हम लोग एक्चुअली थ्रॉबिंग में हैं, मूर्ख की तरह सोच रहे हैं कि बड़े खुश हैं। सत्य क्या है? थ्रॉबिंग। ये सत्य है। जैसे कसाई खाने में पकड़ा हुआ है तो हर सहार में थड़प तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग भी कसाई खाने में पड़े, अभी किसी दिन किसी का गला कटेगा, हैं तो थड़प ही रहे हैं सब लोग। और तरह तरह के, मतलब जैसे त्रिशूल है ना, उसका मतलब यही है, त्रिशूल से आपको बार बार किसी तरह, कभी आध्यात्मिक का क्लेशा, कभी आदि भौतिक का क्लेशा, कभी आदि दैवी का क्लेशा। या तो ये देखो गर्मी से मर रहे हैं अभी लोग, हाँ, गर्मी से कितने लोग मर गए अभी भारत में, करेक्ट? क्या कर सकते हो? करो ना, सूरज को ठंडा करो, बड़ी साइंस बनी आपकी, करो ना ठंडा, कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये चीज़ समझना चाहिए कि जो प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते। एक झटका आएगा, यहाँ लाखों लोग मरेंगे, प्रकृति से कोई युद्ध नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, जापान में झटका आया, 4 लाख लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये घमंड साइंस ने जो हमने मूर्खता से दिया है मनुष्य जीवन को, ये निकल जाना चाहिए। तब आप साधु संग में जाओगे, आपको पता चलेगा यही मेरी सुरक्षा है, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, करेक्ट? नहीं तो आदमी साधु संग में क्यों जाएगा? क्यों आप किसी दोस्त को बोलो चलो ये साधु संग में, बड़ा घमंड है उसको, सब कुछ मेरे में, मेरे को कुछ नहीं मालूम है तुमको। साधु संग में जाओगे, देन श्रद्धा, साधु संगा, देन भजन क्रिया, उसके बाद क्या होगी? भजन क्रिया। साधु लोग आपको, साधु संग में मतलब जैसे मैंने बताया आचार्य के संग। भजन क्रिया एक्चुअली आचार्य के आदेश अनुसार हम आप बताते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं बता सकते। जस्ट लाइक हम लोग नर्स हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है ना, वो आप साधु की तरह मान लीजिए, वो बोलता है ये दवाई दे दो उसको, आपको, करेक्ट? तो सेम वे हम लोग, प्रभुपाद जी तो डॉक्टर हैं, हम लोग नर्स की तरह मान लो। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया है, क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया है? आचार्य ने दुनिया को देख के हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए और पापों से जीवन को एक क्या कहते हैं, शुद्ध जीवन व्यतीत करिए, पापों से मुक्त, और भगवान का, हरि का नाम जपिए। ये उनका प्रेस्क्रिप्शन है। और साथ साथ इतनी सारी किताबें लिखी हैं, पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।